मुर्दाबाद कॉर्पोरेशन मुर्दाबाद कॉर्पोरेशन मुर्दाबाद हेलो, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के मकतमपुरा वार्ड में जिस तरह से डंपिंग जो है एरिया का जब से प्लान हुआ तब से ही ये जो है विरोध चल रहा है। आज वो विरोध कहीं ना कहीं जो है उग्र आंदोलन की तरफ आगे बढ़ा और अहमदाबाद की प्रहलाद नगर जो कॉर्पोरेशन ऑफिस है उत्तर दक्षिण जोन की, वहाँ पर एक मोब आया है जो है आवाम का, और यहाँ पर आकर धरना प्रदर्शन दिया है। अधिकारियों से जो है नारेबाजी करके उन तक जो है ये बात पहुँचाने की कोशिश की है। लेकिन आज से पिछले दिनों में ये होता था कि आवाम जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की मोहताज रहती थी और कोई पॉलिटिकल पार्टियों के उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहते थे। आज कहीं ना कहीं सारी पॉलिटिकल पार्टियों के ऑप्शन है इन आवाम के पास और सभी पॉलिटिकल पार्टियों की जो है टीम भी इनके साथ जुड़ी है, कंधे से कंधा मिलाकर इस आवाम के साथ खड़ी है। उसके साथ साथ सामाजिक आगेवान भी यहाँ पर जुड़े हैं। हम सीधा जो है आंदोलनकारी नेता हैं जो जिन गुजरात के लिए और गुजरात के हक में बच्चों के लिए हर वक्त हर हमेशा खड़े रहते हैं, उनके साथ हम सीधा बात करेंगे। युवराज सिंह हमारे साथ मौजूद है। सर, कैसे देखते हो, आपकी आवाज़ से सरकार हिलती है, गुजरात की कॉर्पोरेशन क्या हिलेगी आपकी आवाज़ से? જોવા જઈએ તો છેલ્લા ઘણા સમયથી આપણે અમદાવાદને સૌથી સેફેસ્ટ સિટીનો એવોર્ડ આપ્યો છે, એટલે કે સૌથી સુરક્ષિત સિટી એટલે કે સૌથી સુરક્ષિત શહેર એટલે કે અમદાવાદ. પરંતુ અમદાવાદના સુરક્ષિત શહેરમાં આ મુક્તાપુરાનો જે વિસ્તાર છે ત્યાંના જે નાગરિકો છે 50,000 કરતાં વધારે નાગરિકો એ ક્યાંક ને ક્યાંક પોતાની જાતે સુરક્ષિત મહેસૂસ કરી રહ્યા છે. સ્વચ્છ ભારતના બણગા ફૂંકવામાં આવે છે કે ભારતને આપણે ક્લીન કરાવવું છે, સ્વચ્છ ભારતની નારાઓ લાગે છે. પરંતુ સ્વચ્છ ભારતના નારાઓમાં આજે જે વિસ્તારમાં લગભગ જોવા જાવ તો જે પબ્લિક છે એટલે કે મુક્તાપુરાની જે પબ્લિક છે એમાં 50,000 કરતાં વધારે પબ્લિક આજે જે વિસ્તારની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક ડમ્પિંગ સાઇટ બનાવવામાં આવી રહી છે તેનો વિરોધ કરવા માટે આજે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની જે કચેરી આવેલી છે, કહી શકાય કે દક્ષિણ કચેરીએ, તો અહીંયા એને કોઈ મળવા સુદ્ધા તૈયાર નથી. તમે વિચારો કે કમિશનર છે, કમિશનર ભાગી ગયા છે, બીજા જે એના નીચલા અધિકારીઓ છે કે ઉપલા અધિકારીઓ છે એ પણ જતા રહ્યા છે. અહીંયા પબ્લિક આવી છે પોતાના હક અધિકારને ન્યાય માટે કે ભાઈ અમે અમારા વિસ્તારની અંદર જે ટેક્સ આપીએ છીએ, જે જગ્યા ગાર્ડન માટે ફાળવેલી છે એ જગ્યાને શા માટે ભાઈ ડમ્પિંગ સાઇટ બનાવવામાં આવે છે? તો અહીંયા જવાબદેહી જેની બને છે એ જવાબદારી દેનાર વ્યક્તિઓ આજે ગાયબ થઈ ગયા છે. એટલે તમે જોઈ શકો છો આજે અંધેરી નગરી અને ગંડુ રાજા જેવું શાસન એ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની આ અમદાવાદ કચેરીમાં ચાલી રહ્યું છે. સર, હવે કહી શકાય કે પહેલાં જે આ જે માઇનોરિટીઝ છે કે એસટી ઓબીસી જે લોકો અવાજ નથી ઉઠતી, હવે આવા સમયે તમારા જેવા નેતાઓ અને સામાજિક આગેવાનો આગળ આવ્યા છે અને આમ લોકોની અવાજ હવે કોર્પોરેશન કે સરકાર સુધી પહોંચે છે. ખાસ કરીને જોવા જઈએ તો અહીંયા તમામ પ્રકારના, તમામ વર્ણના, તમામ જાતિના, તમામ ધર્મના એ બધા જ નાગરિકો એ સોસાયટીમાં રહે છે. એ શેરીમાં સોસાયટીમાં જ્યારે રહી રહ્યા છે ત્યારે બધી જ અગવડતાઓનો સામનો કરી રહ્યા છે. વાત રહી અવાજ નથી પહોંચતો એમ નહીં, વાત રહી બંધારણ જે છે ને બંધારણનું પાલન નથી થતું.
આજે આર્ટિકલ 19 વાણી સ્વતંત્રતા છે, આજે રાઇટ ટુ લાઈફ એટલે કે આર્ટિકલ 21 કે ભાઈ જીવન જીવવાનો અધિકાર અમને છે, ભાઈ અમારે સ્વચ્છ હવા જોઈએ છે, સ્વચ્છ પાણી જોઈએ છે, સ્વચ્છ વાતાવરણ જોઈએ છે, સ્વચ્છ પર્યાવરણ જોઈએ છે, એના માટેની લડાઈ લડીએ છીએ. તો આ બંધારણ વિરોધી જે સરકાર છે એ બંધારણને નેવે મૂકી જે સામાન્ય જનતાના જે હક અધિકાર છે એને ક્યાંક ને ક્યાંક ઠેસ પહોંચાડવાનું કાર્ય કરી રહ્યા છે. એટલે પર્યાવરણ વિરોધી છે, એના આર્ટિકલ જે હક અધિકારો છે એના પણ વિરોધી છે, અને સામાન્યતઃ સૌથી વધારે કહી શકાય કે જે પબ્લિક છે એ પબ્લિક પોતાની વાત મૂકવામાં આવે છે તો એ પબ્લિકની વાત સાંભળવા સુદ્ધા પણ તૈયાર નથી. તમે વિચારો આજે જે વિચાર કહી શકાય કે બંધારણની અંદર કીધું કે ભાઈ તમને જીવન જીવવાનો અધિકાર છે, તમને પાણી શુદ્ધ મળવું જોઈએ, તમને વાતાવરણ શુદ્ધ મળવું જોઈએ. આજે પાણી પણ શુદ્ધ નથી મળતું, આજે વાતાવરણ પણ શુદ્ધ નથી મળતું. આજે જે વિસ્તારમાં જે ખરેખર પ્લોટ ખાલી છે, જો સરકારને એટલી બધી ચિંતા હોય તો એ પ્લોટ ઉપર કાં ગાર્ડન આપે, કાં કહી શકાય કે સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયાને કે એસઆઈને સાઈનીને કે ભાઈ તમે અહીંયા સારામાં સારું અહીંયા સ્પોર્ટ્સનું એક્ટિવિટી માટે તમે સારી વ્યવસ્થાઓ આપો, અને જેથી કરીને ત્યાંનો જે બાળક એ વિસ્તારનો જે બાળક છે, વિસ્તારનો બાળક ભણી ગણીને આગળ વધે, તેની સાથે સાથે એ શારીરિક રીતે પણ સક્ષમ બને એવા મજબૂત કરીએ. કારણ કે જે ક્રાઇટેરિયા છે, જે રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન જેને આપણે કહીએ, એ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન પણ નેવે મૂકે છે. કારણ કે જે જગ્યાએ ડમ્પિંગ સાઇટ બનાવવાનું નક્કી કર્યું છે એના 100 મીટરની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક શાળાઓ આવેલી છે, 3 થી 4 શાળાઓ આવેલી છે, બીજી કહી શકાય કે જે રહીશો રહ્યા છે એની પણ પોતાની બિલ્ડિંગો છે. એટલે ડમ્પિંગ સેટ બને તો એના પણ ઘણા બધા પ્રશ્નો ઊભા થવાના છે, પણ એ પ્રશ્નને આજે કોઈ પણ વ્યક્તિ દરકાર કરવા માટે આ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન જે કચેરી છે આ દક્ષિણ પશ્ચિમની કચેરીમાં આજે કોઈ સાંભળવા માટે સુદ્ધા તૈયાર નથી. તો આ લોકો હવે એ જ ઈચ્છે છે કે આવનાર દિવસોમાં એમની વાત સાંભળવા માટે આ લોકો તૈયાર થાય. તો તેના માટે તો તમારે જે આગેવાનો કે પોલિટિકલ પાર્ટીને આગળ આવવું પડશે, આ જનતાની સાથે ઊભું રહેવું પડશે. તો તમે આવનાર દિવસોમાં એમની સાથે ઊભા છો ને કઈ રીતના એમની લડાઈને આગળ લઈ જશો? આ લોકોના જે હકની માંગણી છે, જે ખરેખર કહી શકે પોતાની વાત કરી રહ્યા છે, તેની સાથે અમે ખભોથી ખભો મિલાવીને ઊભા છીએ. જ્યાં સુધી આ બાબતમાં ન્યાય નહીં મળે, જ્યાં સુધી આ ડમ્પિંગ સાઇટ કેન્સલ નહીં થાય, ત્યાં સુધી આ તમામ રહીશો સાથે અમે ખભોથી ખભો મિલાવીને ઊભા રહીશું. પછી આવનાર દિવસોની અંદર આજે કમિશનર અમને નથી મળી રહ્યા, તો કમિશનરને પણ કહેવા માંગીએ છીએ કે તમે અમારા જનતાના એટલે કે સામાન્ય જનતાના ટેક્સના પૈસામાંથી પગાર લ્યો છો, તમારી જવાબદારી એની સાથે સાથે તમારી જવાબદેહી એ બંને બને છે, એટલે રિસ્પોન્સિબિલિટી અને એકાઉન્ટેબિલિટી એ પણ બને છે. જો તમે તમારી જવાબદારી કે જવાબદેહીમાંથી નિષ્ફળ સાબિત થશો અથવા તો એ જવાબદારી કે જવાબદેહી નહીં નિભાવો તો આવનાર દિવસોની અંદર તમારું પદ અમને લેતા આવડે છે. પછી જે લોકો જે ભાષામાં સમજે એને પછી એ જ ભાષામાં જવાબ આપવામાં આવશે. અધિકારી હશે તો અધિકારીની ભાષામાં જવાબ આપવામાં આવશે, જે સામાન્યતઃ કહી શકાય કે કોઈ નેતા હશે તો નેતાની ભાષામાં જવાબ આપવામાં આવશે. પણ આ કોઈ પણ સંજોગે આ ડમ્પિંગ સાઇટ અમે આ વિસ્તારમાંથી રદ કરાવીને રહીશું. चलिए, डंपिंग साइट इस विस्तार से रद्द होगा. आज से पहले ये होता था कि क़यादत लोगों को रास्ता दिखाती थी, लेकिन आज ये भीड़ इस बात की गवाही दे रहे हैं कि लोग क़यादत को रास्ता दिखा रहे हैं. यहाँ पर आवाम हमारे साथ मौजूद है. सर, कैसे देखते हो आपकी सोसाइटी, आपके मकान है, वहाँ पर आपके बच्चे उन स्कूलों में पढ़ते हैं? ये जो डंपिंग साइट जो अभी बन रही है उसमें 24 कलाक काम चल रहा है, और कुछ भी एक छोटी कंप्लेन आज हमारे करनी हो कि भाई गटर है, रोड है, रास्ते, पीने का पानी है जो प्रदूषित आता है, पूरे बरसात के दरमियान पूरा प्रदूषित पानी आया, उसकी एक कंप्लेन करने में हमको बहुत दिक्कत, और उसका जो काम करने के लिए 8 से 10 दिन लगाते हैं. और ये जो डंपिंग साइट का काम चल 24 कलाक, यानी किसी की परमिशन बिना वो रातों रात चालू करना, सोसाइटी जो आजू बाजू के रईस है जिनको तकलीफ है उनको विश्वास में लिए बिना ये काम चालू हुआ है. और ये इनको जल्द से जल्द काम बंद करना चाहिए और पब्लिक को विश्वास में लेना चाहिए. हमारे इसके अलावा और बहुत मुद्दे, हमारे एरिया के अंदर फायर ब्रिगेड नहीं है, अच्छे गार्डन नहीं है, अच्छा मैदान नहीं है रमने के लिए, स्विमिंग पूल, स्कूल नहीं है, अच्छे दवाखाने, हॉस्पिटल नहीं है, छोटे छोटे जो दवाखाने हैं उसमें कभी डॉक्टर होते हैं नहीं होते, और कुछ भी इसमें जो प्राथमिक सुविधा वो हमको मिलती नहीं है. तो हमको सिर्फ कचरा दिया गया है, सिर्फ कचरा. हमको ना पीने का पानी भी नहीं दिया गया और वो शुद्ध पानी नहीं दिया गया, हमको सिर्फ कचरा दिया. और हम पूरा टैक्स भर रहे हैं, पब्लिक पूरा टैक्स भरती है, एडवांस टैक्स भरती है. तो हमको हमारे टैक्स के पैसों का कचरा नहीं चाहिए, हमको अच्छी चीज़, अच्छी सुविधा चाहिए. और आपके मीडिया के जरिए से और युवराज जी सर भी हमारे साथ, आप सबका शुक्रिया है, और आने वाले टाइम में आप हमारा साथ दोगे, हमारी यही रिक्वेस्ट है. थैंक यू. चलिए, आवाम ने इन्हें टैक्स दिया और कॉरपोरेशन ने इन्हें कचरा दिया. यहाँ पर लोग हमारे साथ मौजूद है, सीनियर सिटीजन है. आपकी सोसाइटी में, मोहल्लों में ये तकलीफ अब जो है सामना करना पड़ेगा. खुशी की बात ये कि अब आप अकेले नहीं हो, आपके साथ युवराज जी सी जैसे जो है नेता, पॉलिटिकल लोग, सामाजिक लोग भी खड़े हैं. तो कितना आप सुरक्षित अपने आप को मानते हो? इस लड़ाई में आप कामयाब हो? जी, ये जो मकतमपुरा को ये लोग गेट हाउस बनाना चाहते हैं. गेट हाउस का मतलब आप समझेंगे कि जर्मनी के अंदर जो यहूदी रहते थे तो यहूदी को कॉर्नर कर दिया गया था, सभी सुविधाओं से वंचित कर दिया गया था, फैसिलिटी कुछ भी देने की, पूरा अत्याचार करने का वही स्थिति आज हमारे मकतमपुरा की जा रही है. सुविधा के नाम पर जीरो है. दूसरा, जो स्कूल जहाँ साइड बन रही है उसके सामने स्कूल है सिर्फ 15 मीटर के अंतर पे. उस स्कूल में मैं पर्सनली जाता हूँ, देखता हूँ जो बच्चे पढ़ने आते हैं इतने गरीब है जिनके पाँव में जूते तक नहीं होते.
इन गरीबों के सामने अगर ये डंपिंग साइट बन जाती है तो ना तो बच्चे पढ़ पाएंगे ना जी पाएंगे। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है, एएमसी क्या चाहती है कि बच्चों को पढ़ाई बंद कर देनी है, इनको मार डालना है। तो अगर बंद नहीं होता है तो हम जब तक ये बंद नहीं होगा तब तक हम आंदोलन चलाते रहेंगे और साइट को बंद करा के रहेंगे। उम्मीद है कि ये लड़ाई में सब मौजूद है आपके साथ, तो आपको लग रहा है कि ये अब लड़ाई में हमारे एक कॉल पे ऊपर 5,000 लोग इकट्ठा हो चुके हैं। हाँ, तो अगर कॉर्पोरेशन नहीं मानती है तो 5 के 25,000 लोग यहाँ इकट्ठा होंगे और ये आंदोलन उग्र बनेगा। चलिए, ये आंदोलन अब उग्र बन सकता है और बनेगा, ऐसी लोगों की मांग है। यहाँ पर लोग तिरंगा के साथ पहुँचे हैं। लोगों की एक ही मांग है कि यहाँ से जो है मकतमपुरा विस्तार से डंपिंग एरिया हटाया जाए, कचरा हटाकर उन्हें जो है बड़ा सा गार्डन, सुरक्षित जो है स्विमिंग पूल, जो बड़े अस्पताल, ऐसी सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, बड़ी स्कूल मिलनी चाहिए, जिसकी जगह पर टैक्स के पैसों का इन्हें कचरा मिल रहा है। मकतमपुरा वार्ड में पिछले 15 दिनों पहले जनता को ये पता चला कि बंद दरवाजों में अधिकारियों ने मीटिंग करके मकतमपुरा वार्ड का एक 2800 वार का प्लॉट, उसके अंदर डंपिंग यार्ड बनाने का प्लान कर दिया। तो इस बात को लेकर जब जनता को पता चला तभी जनता एकदम उग्र हो गई थी। और आज आप देख रहे हो कि हजारों की तादाद में आज अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की दक्षिण पश्चिम जोन की ऑफिस का यहाँ पे घेराव हो रहा है। ये ऑफिस जब से बनी है तब से पहली बार ये हो रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग इस ऑफिस का घेराव कर रहे हैं। तो बात यह है कि मकतमपुरा वार्ड के अंदर पिछले 10 सालों से ज़्यादा वक्त से लोग अगर ये कह रहे हैं कि हमको सिर्फ एक शौचालय चाहिए, जो नरेंद्र मोदी साहब जिसके एडवर्टाइज करके प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन वो शौचालय बनाने के लिए अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को और उनके अधिकारियों को जगह नहीं मिल रही है। तो मैं अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर साहब पानी साहब से कहना चाहता हूँ कि बंछानिधि पानी साहब, आप 2800 वार का प्लॉट मकतमपुरा का काट के कचरे का डंप यार्ड बनाने में दे रहे हो। मकतमपुरा की जनता फिलहाल में गांधी चिंधिया मार्ग पर ये आंदोलन कर रही है। आने वाले वक्त में हमने पहले भी बताया था और फिर से बता रहे हैं कि अगर ये काम को रोका नहीं गया तो हम भगत सिंह का मार्ग अपनाने में पीछे नहीं हटेंगे। वहाँ पे जो पतरे लगे हैं, वहाँ पे जो दीवारें बनाने की कोशिश कर रही है, उसको उखाड़ फेंकने का काम मकतमपुरा की जनता और मैं एजाज खान हम करेंगे ये। तो आप ये समझ लीजिए, मकतमपुरा वार्ड के अंदर एसओजी ऑफिस देनी है, एसपी ऑफिस देनी है, डीसीपी ऑफिस देनी है, सुएज ट्रीटमेंट प्लांट देना है, ये सारी चीज़ों के लिए जगह है। लेकिन मकतमपुरा को जब गार्डन चाहिए, मकतमपुरा को जब कम्युनिटी हॉल चाहिए, लाइब्रेरी चाहिए, जिम्नेशियम चाहिए, स्विमिंग पूल चाहिए, उस तरह की व्यवस्था चाहिए, खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है बच्चों के लिए, ये सब व्यवस्था के लिए आपके पास जगह नहीं है। जिस जगह पे ये जगह डंप यार्ड बन रहा है उससे बिल्कुल 15 मीटर डिस्टेंस के अंदर एक बहुत बड़ी सरकारी स्कूल है और आसपास बड़ा रईसी इलाका है। तो हमारा सिर्फ यही कहना है कि इस काम को रोक दिया जाए। अगर नहीं रोका जाएगा तो मकतमपुरा की जनता को आपको उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा। चलिए, अब लोग लड़ने की तैयारी में हैं, मूड में हैं और इस जो है डंपिंग को किसी भी तरह से यहाँ से दूसरे वार्ड में या दूसरे इलाकों में ले जाया जाए जहाँ पर आसपास में रेसिडेंट्स और स्कूल ना हो, ऐसे खुले विस्तारों में ले जाने की इन लोगों की मांग है। इन लोगों का कहना यही है कि हमने आपको टैक्स दिया है तो आप हमें कचरा मत दीजिए, आप भी हमें टैक्स की सुविधा के सामने हमें अच्छे स्कूल, अच्छे गार्डन, अच्छे स्विमिंग पूल, अच्छे जिम्नेशियम और ऐसी सुविधाओं को जो है हमारे विस्तार में दीजिए। इस आंदोलन के साथ साथ लोग सब जुड़े तो हैं, लेकिन ये आंदोलन यहाँ खत्म नहीं होता। कल 8 से 9 बजे के बीच मॉर्निंग में लोग फिर वो डंपिंग साइट पे जुड़ेंगे और आंदोलन कल से फिर शुरू किया जाएगा। अभी फिलहाल इनकी बात सुनने के लिए अधिकारी यहाँ पर पहुँचे नहीं है। गुरुवार तक का इन्हें जो है थर्सडे का टाइम दिया है, लेकिन ये लोग यहाँ पर रुकने के लिए तैयार है जब तक उनके अधिकारी इनको आकर मिलते नहीं है। ये एशिया की सबसे बड़ी लघुमती एरिया है। ये एरिया में सब मुसलमान रहते हैं, इसीलिए ये दिल्ली जो गैस चैम्बर बना है, इसी तरह ये जुहापुरा और मकतमपुरा को बनाना चाहते हैं। इसकी बिल्कुल पार्शलिटी रखते हैं लोग, क्योंकि ये जमीन 9 लाख चौरस मीटर जगह है, इसमें सारे टाउनशिप बन सकती है और पीछे रिवर के हिसाब से इसका डेवलपमेंट हो ऐसा है। परंतु ये लोग पार्शलिटी रख के ये जो मकतमपुरा की रईस को लोग चले जावे, इसीलिए ये साजिश है, ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लेकिन ये हम इसका विरोध है, किसी को सुना भी नहीं, किसी को ऐसे पब्लिक मीटिंग भी नहीं करी, यानी बार ये स्टैंडिंग कमेटी वो लोगों ने ठहराव कर दिया है और ठहराव में पब्लिक को कोई विश्वास में लिया नहीं, ना कॉर्पोरेटर के लिया है। कॉर्पोरेटर भी उसके साथ लड़ते हैं, लेकिन इसके हिसाब से कोई पहुंच जाती है, ये सुनने वाले नहीं है। ये इलेक्शन आता है, इसीलिए हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं और पूरे देश में तुम जाओ, जहाँ भी जाओ, यूपी बिहार सब जगह ये लोग मुसलमानों के लिए सब प्रताड़ित करते हैं
और प्रताड़ित करते हैं मुसलमानों के लिए, उनका सीट पे बैठना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं इलेक्शन। इसीलिए लघुमती आज़ादी में मुसलमान ने पहले हाथ उठाया था। ये आज़ादी देश मुसलमान और हिंदू साथ में रह के आज़ादी लड़े थे, और ये लोग उसको चढ़ाएंगे। ये सामने संगठन है, संगठन को उनका है घर घर जाके मुसलमानों को प्रताड़ित करना, हमारे का बुलडोजर चलाना। इसीलिए ये हमको चलाने की ये साजिश कर रहे हैं। इसीलिए ये पूरे मक्तमपुरा वार्ड का पूरे भरपूर विरोध है। इसीलिए ये डंपिंग साइट बंद होनी चाहिए। चलिए, ये लड़ाई एक अलग मोड़ क्यों पकड़ रही है आपको शायद पता नहीं होगा आवाम को, लेकिन ये जो सत्ता पे बैठे लोग हैं उन्हें अच्छी तरह से पता है कि इन्होंने इनके दिलों में, इनके दिमाग में हिंदू मुस्लिम का एक जो है प्रोपेगेंडा फिट कर दिया है। और आज कहीं ना कहीं ये डंपिंग की लड़ाई भी हिंदू मुस्लिम का मोड़ लेती है। अब गलती आवाम की नहीं है, गलती तो वो बैठे हुए नेताओं की है जिन्होंने इनके दिलों में, इनके कानों में, इनके रगों में ये जहर को भर दिया है। क्या कहोगे? ये लड़ाई जो है आज पूरे मुस्लिम मेजोरिटी के ऊपर आ गई है, लेकिन ये लड़ाई 1980 से चालू हुई है। जहाँ पर मुस्लिम वर्ग ज़्यादा काम करता था उसी चीज़ को ये बंद करना चाहते थे, और वहाँ से ये लोगों की सफलता मिली है। और मुस्लिम के विरोधी वहाँ से ये लोग हर चीज़ को मुस्लिम को हैरान करना चाहते हैं। और उससे आगे मैंने नौकरी करी है, गवर्नमेंट नौकरी करी है। गवर्नमेंट नौकरी के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट कैशियर लोग केस जीत गए थे, वहाँ से लेके अभी तक सुप्रीम कोर्ट हो के कोई भी कोर्ट है, ये लोग कोर्ट का अनादर करते आए हैं। और इनको कोई चीज़ की डर ही नहीं है, कायदे कानून की, कोर्ट की कोई चीज़ की डर नहीं है। एक तरफी ये लोग हिटलर शाही चलाना चाहते हैं। और ये मेरा कहना है सरकार को नहीं, ये कोर्ट को कहना है कि अब तुम ऐसी एक वो बनाओगे जिसकी वजह से ये कि हिटलर शाही ना चले, और एक कौम के ऊपर यानी मतलब हिटलर शाही और डंडा नहीं चलावे। और मुस्लिम वर्ग में जो इनको सफलता मिली है, और वो सफलता इनकी नाकाबी होनी चाहिए। और हमारे लोगों का इस आज़ादी के अंदर खून बहा है और खून हमने दिया है, और उस आज़ादी के हक के ऊपर हम बंधारण के हक पे हम यानी लड़ाई लड़ना चाहते हो। और हमारे मुस्लिमों को जितना हैरान करना चाहते हैं हम इतने मजबूत होते जाएंगे, और हमारी लड़ाई मजबूत होगी। और ये हिटलर शाही की जो सरकार है इसको हम ख़त्म करेंगे, और आज नहीं तो कल भी ख़त्म होगी, ये मिट्टी में मिल जाएगी। बस इतना मेरा कहना है। चलिए, ये लोगों की सोच बदली है, लोग आगे आए हैं इन लोगों की जो है हिटलरशाही तानाशाही सरकार के विरोध में। आज कहीं ना कहीं लोगों को ये कहना पड़ता है कि हिटलरशाही सरकारों का अंत आएगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, आप लोगों ने भी देखा होगा, इतिहास पढ़ा होगा, राजा महाराजाओं के जो है राजगादियाँ नहीं रही तो इन लोगों की सरकारें कैसे रहेगी? सरकारें आती जाती है, लोकशाही देश है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपने तरीके से। अगर ये सरकार किसी को पसंद नहीं है और सरकार हिटलरशाही तानाशाही जो है रुख इख्तियार करती है, तो आने वाले दिनों में सरकार को बदलने की लोगों की तैयारी है। और आज कहीं ना कहीं ऐसी मांग के साथ लोग यहाँ पर पहुँचे हैं कि अगर इस तरह से ही माइनॉरिटीज़ को ओबीसी एसटी ओबीसी को इस तरह से परेशान किया जाएगा तो लोग अब जो है आंदोलन के तौर पर सड़कों पर और कॉरपोरेशन अधिकारियों की ऑफिसों का घेराव करेंगे।